Hello my dear student, in today's lecture I am going to discuss about three rules which are used in magnetic effect of current. Okay, so the first rule is right hand thumb rule. So what do you mean by right hand thumb rule? Right hand thumb rule. What is this rule? Suppose this is a wire and I current is flowing through this wire. As you know, a current carrying conductor produces magnetic field around it. And as you can see, this is a current carrying straight wire, so the magnetic field will exist in the form of concentric circle. Magnetic field lines will exist in the form of concentric circle. Here you can see, suppose this is a wire and I current is flowing in upward direction. Okay student? So due to this flow of current, magnetic field lines will exist in the form of concentric circle. ठीक है, इस तरह से concentric circle के form में magnetic field exist करेगा. So what is right hand thumb rule? What it gives? It gives the direction of magnetic field. It gives the direction of magnetic field. As you know, the magnetic field line will exist in the form of concentric circle. As you move away from the wire, then magnetic field will decrease. A point, B point, C point. Magnetic field at A is greater than magnetic field at B. Magnetic field at B is greater than magnetic field at C. You already remember this, and this is concentric circle. कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है. तो मैं इस तरह से अपने थंब को रखता हूँ. देन दिस कर्ल फिंगर, ये जो कर्ल फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देगा. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आप ऐसे रखते हो, आप ऐसे करके करंट की डायरेक्शन को इस तरह से शो कर रहे हो. ऊपर अगर करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज अ वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस. द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, means perpendicular to this board, and it is inward. Okay, this is the magnetic field will exist perpendicular to this blackboard and it is inward. What is this? What is the meaning of this cross sign? ये cross sign indicate कर रहा है कि magnetic field lines पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस साइड? इट इज आउटवर्ड. यू सी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ऐसे घूम करके आएगा, इधर से बाहर निकलेगा. करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे गया, ये डायरेक्शन ऐसे बाहर निकला. सो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल सिंपली गिव्स the direction of magnetic field. Means if you hold a conductor in such a way, if your thumb shows the direction of current, then the direction of magnetic field can be determined with the help of this curled finger. Means in this side the direction of magnetic field is inward, and in this side the direction of magnetic field is outward. This is all about right hand thumb rule. ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और आप करंट के डायरेक्शन में अगर अपने थंब को रखते हो, तो ये जो कर्ल फिंगर है, ये डायरेक्शन किसका देगा? ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का. और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बन रहा है, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज कॉल्ड, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो बन रहा है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दिस इज व्हाट? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस.
You can copy this. Now the second rule is Fleming left hand rule. First you write Fleming right hand rule. What is Fleming right hand rule? सी स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, जैसे आप कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, ठीक है, क्रिकेट खेलता हूँ, राइट हैंड से बैटिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना राइट हैंड को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं जनरेटर को मुझे चालू करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड से चालू करूँगा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। राइट हैंड रूल में किस में अप्लाई करूंगा, राइट हैंड से किससे चालू करूंगा, जनरेटर में। और जनरेटर में हमें आउटपुट में क्या मिलता है, करंट, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के यूज़ करके हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देन व्हाट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? Stretch your three finger of your right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Which finger? Forefinger, thumb and central finger. You can see here all three are mutually perpendicular. This is perpendicular to this and this is perpendicular to this. Means all are, if I move to this thumb in this section, then you will get in this way. So you can see all three are mutually perpendicular to each other. Okay student, now listen to my point. How many fingers are there? 4 finger, ठीक है। 4 finger, central finger and thumb. 4 finger, central finger and thumb. Wait, first you write 4 finger, the second one is thumb and the third one is central finger. ऐसा लिखने का कारण क्या है, मैंने पहले 4 फिंगर को क्यों लिखा, इसको लास्ट में क्यों लिख रहा है, ठीक है, ये बता रहा हूँ। देखो 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी झगड़ा करते हो तो क्या बोलते हो, फील्ड में आओ, इसी का यूज तो करते हो, फील्ड में आओ ऐसे। सो 4 फिंगर, दिस इज 4 फिंगर एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन व्हाट इज थंब? इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, यू कैन सी। सो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ जनरेटर चालू करने से मिलता क्या है, जनरेटर चालू करने से हमें करंट मिलता है। So the direction of current will be given by central finger. Direction of current is given by central finger. So what is Fleming right hand rule? Fleming right hand rule states that stretch your 3 finger of your right hand, that is forefinger, thumb and central finger, in such a way that they are mutually perpendicular to each other. If forefinger gives the direction of magnetic field, thumb gives the direction of motion of the conductor, then the direction of induced current will be given by central finger. अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, अगर मैं बोर्ड पे ऐसे बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा बताओ? ये इस तरह से बनाऊँगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आप देख सकते हो, राइट हैंड है मेरा, ये ऐसे। तो ये एक हो गया, एक ऐसे हो गया, और एक कैसा है बताओ, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको तो हम ऐसे नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? ऐसे तो नहीं बना सकते, हवा में कहाँ बनाऊँ, ऐसे बनाऊँगा। सो व्हाट इज दिस फिंगर? दिस इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, दिस फिंगर शोज द, दिस इज थंब, ये थंब बता रहा है
ये क्या बताएगा? दिस इज सेंट्रल फिंगर, ठीक, एंड सॉरी दिस इज फोर फिंगर, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज थंब एंड दिस इज सेंट्रल फिंगर। आप यहां पर क्या लिख दो? सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड दिस इज फोर फिंगर। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऐसे बनाने का कारण क्या है? थंब बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बताओगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा बताने का कारण क्या है? क्योंकि आप देख सकते हो ये थंब है, ये फोर फिंगर है, तो ये डायरेक्शन किसकी देगी? ये डायरेक्शन देगा करंट का, क्योंकि जनरेटर में हमें क्या मिलता है? आउटपुट। ट्रिक क्या है बता रहा हूँ फिर से, ध्यान से सुनना, ठीक है? ट्रिक ध्यान से याद रखना। राइट हैंड रूल किस में लगेगा? जनरेटर में, क्योंकि मैं राइट हैंड हूँ तो राइट हैंड का रूल किस में लगेगा? जनरेटर में। जनरेटर में आउटपुट में क्या मिलता है? करंट, ठीक है? तो करंट इंड्यूस होगा और वो करंट की डायरेक्शन कौन देगा? वो करंट की डायरेक्शन देगा सेंट्रल फिंगर, इसलिए हमने सेंट्रल फिंगर को लास्ट में लिखा है, ठीक है? कॉपी कर सकते हो आप इसको। स्टूडेंट एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? करंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है, याद रखना। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है? तो ये पॉइंट आप याद रखना। Now the third rule is Fleming left hand rule. Fleming's, ठीक है? Fleming का लेफ्ट हैंड रूल, Fleming's लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या होता है? ठीक है, देखो तुम्हारे सिलेबस में दो टॉपिक है, एक है जनरेटर और दूसरा है मोटर, ठीक है? जनरेटर तो हो गया, हुआ नहीं है, मतलब कंसेप्ट आपको पता है कि राइट हैंड रूल इसमें यूज़ करेंगे। तो मोटर में कौन सा रूल यूज़ करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड से जनरेटर, लेफ्ट हैंड से मोटर। मैं राइट हैंड से जनरेटर चालू करूंगा और लेफ्ट हैंड से मोटर, ठीक है? सो व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? इट्स अ सिंपली रूल, स्ट्रेच योर थ्री फिंगर, विच फिंगर? थ्री फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स they are, you can see they are mutually perpendicular, their angle between them is 90 degree, okay? angle between them is 90 degree. so मोटर में हमें आउटपुट में क्या मिलता है? जैसे फैन में मोटर लगी रहती है तो उसमें हमें आउटपुट में क्या मिलता है? फैन को जब चालू करते हो तो आउटपुट में क्या मिलता है? जैसे ही फैन ऑन करते हो करंट जाती है, यानी करंट हमको मालूम है, और मैग्नेट के अंदर पहले से ही क्या रहता है? सॉरी, मोटर के अंदर पहले से ही मैग्नेट रहता है। तो पहले से एक मैग्नेट है और फिर एक करंट जा रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा करंट जा रहा है, तो करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे? अगर आपके पास दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ नॉर्थ रहता तो ये दूसरे को रिपेल करते। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है? तो आप याद रखना, इसके कारण, इस फोर्स एक्सर्शन के कारण वो घूमने लगता है। मीन्स आउटपुट में क्या मिल रहा है? मोशन। आउटपुट में क्या मिलेगा? मोशन। तो इस थंब को आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है? तो कैसे लिखोगे? आपको इसमें लिखना है, तीन फिंगर कौन कौन से हो गए बताओ? सबसे पहले फोर फिंगर, ये हो गया फोर फिंगर, दिस इज फोर फिंगर। द सेकेंड वन इज करंट, क्योंकि ये तो हमको आउटपुट में मिल रहा है, क्योंकि पंखा चालू करते हो तो घूमने लग रहा है, मतलब मोशन आया आउटपुट में। आउटपुट में क्या आ रहा है? मोशन आ रहा है, मतलब ये आ रहा है। तो आपको थंब लास्ट में लिखना है, ठीक है? और बीच में कौन आ गया? सेंट्रल फिंगर। उसमें सेंट्रल फिंगर लास्ट में आ रहा था क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा था, इसमें मोशन इंड्यूस हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो आपको लास्ट में लिखना है। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मोशन कह सकते हो, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये आप पढ़ोगे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब प्लेस करते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। Whenever a current carrying conductor is placed in uniform magnetic field,
then that current carrying conductor will experience a force. जैसे अगर एक मोटर है, ठीक है, उसके अंदर पहले से मैग्नेट रखा हुआ है, उसके अंदर एक आर्मेचर कॉइल होता है, उसमें वायर के वाइंडिंग्स होती है, आप स्विच ऑन करते हो, करंट जाता है, करंट जाने के कारण उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है तो दो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, मोशन। और सेंट्रल फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, याद रखना, फील्ड में आओ, झगड़ा करते हो तो क्या बोलते हैं, फील्ड में आओ, इसी फिंगर से यूज़ करते हो ना, आओ फील्ड में, ठीक है। सो कैसे डिफाइन करोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, स्ट्रेच योर थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Which finger? Stretch your forefinger, central finger and thumb of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Okay student? Now if, remember, if forefinger gives the direction of magnetic field, central finger gives the direction of current, then the direction of motion of the conductor or the direction of force experienced by conductor, ध्यान से सुनना, then the direction of force भी कह सकते हो, force experience by conductor, force experience by conductor कौन देगा बताओ, direction of force experienced by conductor is given by thumb. Okay student? Okay, you can copy it. अगर मान लो तुमको इस पे डायग्राम बनाना है तो मैं ऐसे तो नहीं बना सकता हूँ, चलो ऐसे बना रहा हूँ, देखो इस तरह से, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ। तो ये क्या बताएगा बताओ, ये क्या है, अब ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ तो ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज थंब, दिस इज सेंट्रल, दिस इज फोर फिंगर and this is central finger. Okay student, you can copy it, all are mutually perpendicular to each other. So that's all about today's class. एंड स्टूडेंट आप एक बात और याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, करंट की डायरेक्शन वही पॉजिटिव चार्ज की भी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दैट ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।